So hello everyone, welcome back. आज we will continue with for loop. Exactly. Like what the image is saying to us, that Python is saying that let's learn some looping concept. So what's in the looping concept? In the looping concept, particularly we are going to learn about nested for loop. Okay. Yeah, we have done with for loop and while loop, but we are not done with how to deal with nested for loop. That means loop for loop inside loop. Okay. For simply in simple language. So let's begin without wasting our time. Yeah, let's go to our platform. Wait a minute. Yeah, let's go live here. Okay. So for explaining this, I will just take a small coding snippet here. Okay. I have already written the code. Just guess that what it will print. Okay. I have already explained in previous lectures how the string indexing work. What you can guess, or you may, or many of you have already guessed that what will get printed here. Okay. So print indexing work कैसे करता है? So here s of zero, what it means? S of zero means v. Yeah. So when I say s equals to Vibgyor, that are rainbow's color, that are 7 colors. So I have stored the string Vibgyor in variable capital S. ठीक है. So print s of zero means वहाँ पे s of zero print होगा, means index value zero किसकी है? V की. Yeah, I have already told you indexing start from zero. So first letter of s variable क्या है? First character क्या है? String में V है. So s of zero V print करेगा, s of one I print करेगा. Just for the revision. ठीक है. So yeah, ये सबको पता है. ठीक है. और सेम चीज प्रिंट भी हो गया. ओके. या बट यहाँ पे क्या अपने को एरर क्या दे रहा है? एस ऑफ 7 स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. ओके. ये एरर आपको यू विल गेट इट नाउ आल्सो एंड इन अपकमिंग लेक्चर्स आल्सो. ठीक है. तो यू गेट यूज्ड टू इट. तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब देखो, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो. टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 7. So it will go from 0 to 6. Okay, total we have count 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 काउंट हो गया. तो 7th इंडेक्स मतलब आउट ऑफ रेंज है. तो हम एक्चुअली जा रहे हैं 6 तक, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से. ओके, सो दैट्स फॉर दैट रीजन एरर आ रहा है. सो वी विल रिमूव इट. ओके, सो नाउ देयर इज नो एरर. अभी वो एक जो हमने यहाँ पे किया प्रिंट बार बार यूज करके, नाउ वी विल डू इट विथ वन लाइन ओनली. s equals to Vibgyor for I in range of 7. अब यहाँ पे 7 क्यों यूज किया? क्योंकि रेंज फंक्शन लास्ट जो कुछ भी रेंज की वैल्यू होती है n, उसको एक्सक्लूड करता है. दैट इज नॉट इंक्लूडेड. ओके. सो 7 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. i की वैल्यू 0 से 6 तक ही जाएगी. सो दैट्स व्हाई प्रिंट s of i. सेम चीज प्रिंट होगी. ओके, फॉर लूप तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया. ठीक है. अब ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ. ओके. सो नाउ इमेजिन देयर आर टू ब्रदर्स, समय एंड तरन. ठीक है. अब तो दोनों भाई ना, उनका एक फिक्स है कि वो मतलब वीकली 7 कलर्स ही पहनेंगे. ठीक है. उनका फिक्स है कि वो 7 कलर्स ये इन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाटएवर इट इज. तो विबग्योर में से वो उन्हीं में से वो कलर पहनेंगे. ठीक है. दोनों भी, और पूरे 7 वीक्स में इसके अलावा कोई कलर नहीं पहनेंगे. ठीक है. क्वेश्चन ये नहीं था. So the question is, whenever suppose समय wears violet color, V color, तो उस टाइम पे टी तरन विबग्योर में से कोई भी कलर यूज कर सकता है, कोई भी कलर पहन सकता है. ऐसा नहीं कि उसने वॉयलेट पहना तो ये वॉयलेट ही पहनेगा. दो भाई है. ठीक है. तो नेसेसरी नहीं है वो वॉयलेट पहन रहा है तो ये भी वॉयलेट पहनेगा, बट ये भी नेसेसरी नहीं कि वो वॉयलेट नहीं पहनेगा. ठीक है. If समय wears one of the colors of from the seven, Taran can wear any of the colors from seven. ठीक है. यही यही चीज है. So मेरा क्वेश्चन ये है कि वो means what I want to say, what are all the possible combinations of colors from this with gear that Samay and Taran can wear. Okay. So combinations of colors क्या है? मतलब how many numbers of combinations we can conclude in the end कि ये दोनों इतने number of combination पहन सकते हैं in 7 days. ठीक है. So yeah, that's what I want to ask for. तो उसलिए मैंने कोड लिखा है. ठीक है. तो यही एग्जांपल है अपना नेस्टेड फॉर लूप का. तो मैंने ये देख, समय को 7 कलर्स दे दिए, तरन को भी 7 कलर्स दे दिए. Then for I in range of 7, I already explained you why 7 is there. ठीक है. And then for अभी उस for loop के अंदर I have again used the for loop for j in range of 7. ठीक है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? For print s of I, t of j. So यहाँ पे हो क्या रहा है? For every combination of color that s wears, t can wear any color. Like that, for every value of I, the entire for every value of I, the entire for loop, nested for loop, get executed for every value of I. So, for example, if I becomes 0, so for I equals to 0, this for loop
this inside for loop, that is j's value, get executed 6 times again for I equals to 0, for I equals to 1, for I equals to 2. क्योंकि यहाँ पे समझो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या हो रहा है कि 6 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई वो लूप एग्जीक्यूटेड हो रहा है, जो कुछ भी वहां पे लिखा होगा लूप के अंदर। बट अभी लूप के अंदर क्या लिखा है, और एक लूप है। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई दिस होल थिंग गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जब आई 0 होगा तो फॉर लूप फिर से रन होगा फॉर j इक्वल्स टू 0 to 6। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अभी हम इसको प्रिंट करके लिखेंगे। ओके, सो वी गेट दिस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। मैं इसको काउंट करते तो नहीं बैठ सकते। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे हो क्या रहा है। सो सी व्हेन आई टेक 0 वैल्यू, ठीक है, तो आई जैसे भी 0 हुआ तो दिस स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, सो जे ने भी फिर एक एक वैल्यू लेना शुरू कर दिया, फिर जे स्टार्ट फ्रॉम जे इक्वल्स टू 0। हो क्या रहा है, लेट्स सी व्हेन आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू 0, सो पहले तो जे 0 लेगा। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 0, एस ऑफ 0 क्या है, वी, टी ऑफ 0 क्या है, वी। सो ऑन दैट डे बोथ विल वियर सेम कलर्स, दैट इज वी वी, व्हाइट। ठीक है, अभी आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और जे की वैल्यू अप टू रेंज ऑफ 7, दैट इज अप टू जे इक्वल्स टू 6, वो वैरी करेगा। ठीक है, उसके अंदर व्हेन आई इक्वल्स टू 0, तो समय वॉयलेट ही पहनेगा फॉर एग्जांपल, एंड नाउ करण विल हैव अनदर चॉइस दैट ही कैन वेयर indigo eye color. Okay, so again then I equals to 0 and j becomes 2. At that time Samay will wear violet and Karan will wear blue color. ठीक है, so like that up to so on and so on, हम I equals to 0 and j equals to 6, मतलब अभी for value of I j equals to 6, मतलब अभी इस लूप का, ये लूप के एंड में पहुंच गया। कौन से, ये इनसाइड वाले लूप के एंड में पहुंच गया। अभी j की वैल्यू 6 हो गई, तो उसके लिए वो क्या पहनेगा, समय के कॉम्बिनेशन में सबसे पहला कलर वॉयलेट वॉयलेट ही रहेगा और वो रेड पहनेगा। ठीक है, सो या सो या सो दे विल प्रिंट वी आर। सो हम देखते हैं कि वी आर प्रिंट हुआ है कि नहीं। देखो वी आर 7 कॉम्बिनेशन में 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वी आर। ओके, अभी आई की वैल्यू चेंज हो गई। अब आई की वैल्यू 1 के लिए वो इनसाइड लूप फिर से रन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम j इक्वल्स टू 0। सो अभी एस ऑफ 1 क्या होगा, एस ऑफ 1 देखते हैं अपन, वी, वी प्रिंट होगा। ठीक है, तो वी प्रिंट होगा। ओके, एंड टी ऑफ 0 वी, एस ऑफ सॉरी, सो एस ऑफ 1 क्या होगा, आई होगा, एंड टी ऑफ 0 वी होगा, सो आई वी प्रिंट होगा, दैट इज इनटू एंड वॉइडेड कॉम्बिनेशन। सो इट विल गो एंड फॉर like I will remain constant again for starting from the equal to 0 to 6, and then I changes ये कब तक रन होगा सब, जब तक I की वैल्यू 6 ना हो जाए। 6 के बाद entire for loop और we will get out of the program। ठीक है, तो we have our output। तो अभी मुझे ना इसको काउंट करना है। ओके, सो there for making it more interesting, what I will do, I will write here I comma j। Okay, so we will get used to that how the values of I and j is changing with respect to every output। Okay, or we can say with respect to every run। देखो पहले 0 0, तो 0 रिमेन कांस्टेंट, आई की वैल्यू कांस्टेंट रही, फिर j की वैल्यू 0 से 6 तक गई, फिर i की वैल्यू 1 हुई, फिर j की वैल्यू 0 to 6 तक गई। ठीक है, हमको क्लियरली व्यू हो रहा है अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है पीछे फॉर लूप। ठीक है, अभी ना मुझे काउंट करना है। Question will not answer. So how many ways in which these two brothers can wear the 7 colors? Okay, so that was my question। तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको अभी काउंट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा मैथ्स यूज करते हैं। तो मैं इनिशिएट करता हूँ काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, एंड आई विल increment count here by 1 for every loop, you can say for every iteration। ठीक है, and what I will print here, I will print here let's write the total ways in which the two brothers can wear, sorry, can wear 7 different colors। And right here, okay, count। Okay, so yeah, completed। अभी
अभी क्या प्रिंट होगा देखते हैं, अभी कितना काउंट आता है देखते हैं। Okay, so total ways in which the two brother can wear 7 different colors is 49. कैसे? देखो, it's all about maths. ठीक है? Computer science is not interesting without mathematics, or we can say mathematical concept, computational concept. ठीक है? वो क्या रहा है? जब समय ने V पहना तो तरंग के पास 7 choices है, इन 7 में से कुछ भी पहन सकता है। ठीक है? So for each choices that समय wear, Taran has 7 choices again. ठीक है? तो समय के बाद कितने choices है? 7. And तन्मय के each choice के लिए कितने choices है? 7. तो 7 into 7, 49. So that's what maths behind it. Okay. So yeah, that's what I want to explain in this video. Keep sharing and keep liking, keep commenting. And if you like this video, like how I explain it, please comment anything. Okay. Thank you. Bye bye.